Hello, everybody. How are you doing? Please let me know who all are live right now. Hello. How many viewers do we have? Who all are live? Please write in the comment section below. So I welcome all of you once again to today's live session. And today is a very special edition where I am inviting one of my lovely friend come ex-colleague. She's based in Chennai and she is Mrinalini Kotwal. And we both are from mental health professional field and she is working as a counselor right now. Today we want to present a very interesting topic. Just take a moment to invite her. Hi Mrinalini, thank you so much for joining in. Hi Petra, so nice to see you. Even my mama is live. Thank you. All right, I'm just inviting her. Namaste Petra. So we'll just take a moment to invite Mrinalini Kotwal. Hello. Hi. Hi, so So nice. good to see you. Same here, same here. It's been a while and Yeah. welcome again. Thank you so much for accepting my request for a Thanks. collaboration. And, Always there for you, and it's pleasure is all mine. So thank you for having me. thank you for all the time. And once again, Hello, thank you hello for to all the viewers. Yeah. yes. So we have right now we have my mama here and another one. She is Petra. She is from Rosenheim, Germany. She's Hi also here. Petra. Namaste, auntie. So, also saying Namaste Kirti. And I'm having my evening tea along with you. Great. Carry on, carry on. So, before all the other people join in, we'll just take some time to just talk a little bit about the topic that we're discussing. And how are things, by the way, in Chennai? How is the lockdown period going on there? Chennai is same as Delhi as and like all over India. We are facing the lockdown and we can't go anywhere. We also unable to go below our building just for little groceries and veggies. That's it. All right. But otherwise, is the situation safe? Is it Yeah, all it is right? safe. In our society, in our area, it is safe. Yeah, so far, All right. so good. That's good. That's good. And Petra, how are things in Rosenheim, Germany? Germany is one of the top hit places in the Yes. world because of coronavirus. How are things there? Please let us know. And she's been working with the first response team, medical team there as well. So she's one brave lady, and I'm very happy to have Wow. her. So Wow. we'll again let's move ahead and introduce. I'll take some time to introduce you. So Yeah. we both have a lot of things in common, which is something I want to boast about. And starting from same birthday to similar educational background to Yeah. using same mathematics maybe. So Yeah. many Yeah. and then we call each other soul sisters Yes. for Yes. good. Yeah, I'm so happy that you've come up with the initiative of Faith in Happiness and you're Thank you. taking started it off, I think, from Delhi because the vibe that unfortunately you have, you were already exploring things in Delhi. Yeah. However, you've been spreading it to Chennai as well, and wherever you will go, you will keep spreading hope and happiness. Uh, Thank you so much. Thank you so much for the wonderful introduction. Yeah. This is on the bottom of people connect with you, and that is something that's a USP. And Thank you. Thank you. it, I'm sure you've worked hard from the educational front, but there are some things which come naturally to a person. So you have that vibe and energy to yourself, where people can connect to you. So that's wonderful. Thank And you so much. It's a real blessing actually. It's a God gift. yes, absolutely, it's a God gift, and you've identified it properly, and with the help of I also extend my thank you to all your lovely family members who have, Of course. so that is Of also very course. important when you do something like that. So Yeah. they are super supportive people and they are my strength
So आज मैं जो भी हूँ अपने फैमिली की वजह से हूँ. So yeah. Absolutely, I'm sure. And they are like the backbone of Of course. yes, it is Of nothing course. to Of course. with the schooling part, but it's throughout life that is support. Yes. Yes. So, Yes. Yes. that's wonderful. So let us introduce today's topic. Yeah. You suggested a beautiful topic, which was a little offbeat, which was information digestion. And this is something which really interests me as well on various levels. I think it's very important for us to learn this basic thing, True. and True. especially times when there is a lot of scare around coronavirus and there's more of information about being thrown on us from everywhere. This is the need of the hour. So, if you would like to just introduce a topic in your way, please go ahead. So, first of all, hello everyone. Hi Shraddha, one of my family So, friend just joined. Yeah, wonderful. yeah. Thank you. So, first of all, I would like to say extend my gratitude towards Kirti for inviting me and giving me the opportunity to share my views on this topic. And uh, inviting you, introducing you as my friend, as my soul sister, since we share same birth date, same likes, dislikes, and same organization. We started our career in psychology. So my batchmate, my colleague. So that's why we are soul sisters. And so lovely to have you as my soul sister, and as we inspire each other so much. Right. Thank you so much. That's lovely, and I think I share the same vibe. So let Thank us you. introduce the topic once in Yeah. your own style because Yes, yes, sure, sure. So today's topic is very interesting. It is information digestion. You must have heard about food digestion. Can I speak in Hindi if we have some Hindi viewers? sure, sure, make it work. So जैसा हम खाना खाते हैं, if we have a good appetite, नॉर्मल खाना खाते हैं तो इट डाइजेस्टेड वेरी नाइसली. बट अगर हम ओवर एपेटाइट करते हैं, ओवर खाना खाते हैं, तो इनडाइजेशन होता है, राइट? Right. सो वैसे ही जस्ट लाइक फूड, इंफॉर्मेशन का भी डाइजेशन, इट शुड बी लिमिटेड, इट शुड नॉट बी ओवर एक्सेस, Right. राइट? सो आजकल ड्यू टू कोरोना वायरस हम लोग इतना इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में. सो वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, and WhatsApp University. Okay. So uh, just to limit it, it's like it is called information digestion, कि आप लिमिट में ही अपनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करो. तो इसके Yes. बारे में हम आज बात करेंगे. That's a beautiful topic. That's a beautiful topic. So let's do a head start about the topic, Yeah, and let's first understand what information really means and what digestion really means. Then we will further, delve a little bit about information digestion. true, true, So true. information is different from knowledge, it is Yes, different from wisdom. This is something which we all must first understand. क्योंकि हमें पहले लगता है कि since I have all the information, probably I know more than anybody else. But right, information is already there in the world. And when we are consuming it, we then convert it into knowledge according true, to our understanding. true, तो true. अलग है, नॉलेज अलग है. इंफॉर्मेशन को समझना या ग्रहण करना, इसका मतलब ये नहीं कि पता चल जाए. द फर्स्ट थिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एट True, टाइम्स इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं हर तरीके से एंड यू नॉट एबल टू प्रोसेस इट इन द राइट मैनर जो उसका true. इंटेंशन है. So it is बिल्कुल, as it is as good as not getting involved completely. तो right. information का फंडा अलग होता है. This is the first primary thing which I think it is important for all the viewers to understand. The second one is digestion. Of course, this is to do with the body, how we are able to process it. Like if we eat food, it is not good enough, right? अगर हमारा body उसको digest नहीं करेगा properly, उसको convert नहीं करेगा energy में,
एंड सेल्स तक हमारे पहुंचेगा ही नहीं, वो सारा जो प्रोसेस डाइजेशन से स्टार्ट होता है. सो यस, दैट इज information, that is digestion, and we'll now delve into information digestion. And True. I just moment to welcome Tushar, Yeah. Drumbar, Yes. and we have Nipali Bata. Hi. Oh, hey. See, you're better half is also. Yeah. Thank you so much for coming in. It And means a Drumbaz is my cousin, Shreyas. okay. Oh, wonderful. Hi, Shreya. Thank you so much Hi. for joining. Yeah. And जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे इधर, प्लीज फील Yes, फ्री yes. टू समथिंग. अगर आपकी True. ओपिनियन आपको कुछ समझ में आ रही है, या व्हाट इज योर टेक ऑन इट, सिंपली आप प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में. लेट अस बिल्कुल. कीप एक्टिव. एंड क्या तो आप कुछ और कहना चाहेंगे अबाउट द टॉपिक फर्स्ट, देन वील स्टार्ट विद whatever. या सो आई वाज जस्ट सेइंग कि जैसे इंफॉर्मेशन डाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे एक मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, वो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल है. तो राइट. वो जैसे ही कुछ नेगेटिव सुनते हैं, जैसे ही कुछ ऐसे कुछ नंबर्स देखते हैं कि अरे इतने हो गए, तो वो बहुत सहम जाते हैं. ही इज वेरी ओवर सेंसिटिव. ऐसे लोगों के साथ डील करना, ऐसे लोगों को समझाना कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आप न्यूज चैनल्स देख रहे हो या व्हाट्सएप देख रहे हो, कंटिन्यूअसली डेटा देख रहे हो, जो स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, तो इससे आपको इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए. करेक्ट. आपको इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि आप सिर्फ अपना देखो, आप अपने फैमिली का देखो, आप अपने रिलेटिव्स का देखो, लेकिन समवेयर समवेयर डाउन द लाइन अनदर कंट्री अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो वो आप अपने अंदर उसको फीड मत करो. तो यही है कि इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट कि जस्ट लिसनिंग लिसनिंग, हर जगह से सुनना सुनना, फिर परेशान होना कि ओ गॉड ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो एंड इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, हम सब ऐसे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये सब क्या हो रहा है. एंड सो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है लोगों को. ये सब लॉकडाउन, लोगों को आदत नहीं है इस चीज की. दे आर नॉट यूज टू इट. नॉट राइट. इवन आवर जनरेशन, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी ऐसा नहीं देखा. सो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. Correct, correct. But I'm picking up this example which you have shared. And do you Yes. think there's a correlation between anxiety and information overload? And by information overload, I'm not only stressing upon this current time, जहाँ पे already ज़्यादा है, but even in general, like before the corona times also. Do you Yes, think yes. that correlation between these two things? I think yes, it's a there is a correlation. Yeah. Okay. आप थोड़ा सा और explain कर सकते हैं how can information overload create anxiousness in a person and probably be one of the factors of anxiety? या सो हर चीज की एक लिमिट होती है. लाइक मैंने बताया कि खाने की भी लिमिट है. मैं एक टाइम पे इतना सारा खाना नहीं खा सकती कि इतना सारा चपातीज एंड राइस एंड दाल. सो देर इज वन लिमिट कि मैं इतना ही खा सकती हूँ, मेरी बॉडी की लिमिट है. वैसे ही मेरे मेंटल हेल्थ की या फिर मेरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की एक लिमिट है. मैं इतनी ज्यादा ओवरलोडेड अगर होती हूँ तो बहुत मुझे भी तकलीफ होती है, मेरे फ्रेंड्स को भी तकलीफ होती है. तो ये इट्स ह्यूमन नेचर कि कुछ भी ओवर एक्सेस, चाहे वो खाना हो या चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, या एक सिंपल एक घड़े का एग्जांपल लेते हैं, एक पॉट का. अगर आप उसमें बहुत पानी डालोगे तो वो ओवरफ्लो होगा, राइट? अगर हम हम्म. प्लांट्स में बहुत पानी डाल रहे हैं तो वो पौधा के लिए ठीक नहीं है. इट्स नॉट फॉर गुड इट्स नॉट गुड फॉर प्लांट्स हेल्थ. तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड बी लिमिट, इन लिमिट. जितना चाहिए उतना ही आप लो. खाना हो गया या कोई इंफॉर्मेशन हो गई, तो इट शुड बी लिमिटेड. सो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड ऐसे है कि जितना इंफॉर्मेशन मुझे होता है तो मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, उसी के बारे में हम सोचते रहेंगे कि अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. तो कहीं ना कहीं वो मेरे मेंटल हेल्थ को भी फर्क पड़ेगा, मुझे एंग्जाइटी होगी कि देन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे फिर से देखना है. अच्छा अभी 60 हो गया, ओके ओके, अनदर हाफ एन आवर बाद अच्छा अभी 70 हो गया, ओ गॉड अभी तो 100 हो गया, ओ माय गॉड ओ माय गॉड. तो ये जितना आप ओवरलोड करोगे उतना ही आपको एंग्जाइटी बढ़ेगा. तो ऑफ कोर्स इट इज कोरिलेटेड.
अच्छा, दैट इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय यू। आपने एक टर्म यूज करा कि हमें हर चीज लिमिट में लेना चाहिए, एंड इंफॉर्मेशन भी जैसे है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक कंज्यूम करनी चाहिए। बट एक इंसान को पता कैसे चलेगा कि उसकी लिमिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सबकी लिमिट जो होती है कम या ज्यादा हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन वन अंडरस्टैंड कि दिस इज माई थ्रेश होल्ड? अगर हम अपना डे को इतना अच्छा बैलेंस कर लें विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ अच्छा ऑथेंटिक सोर्स से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, दैट इज गुड। और हम इतनी पॉजिटिविटी हम उसके सराउंड हो जाए, तो हमें अपने आप मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा कि यार ये एक्सेस इन्फॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। ये इंस्टेंट नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये जब आप बहुत मतलब एक गुड डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करोगे, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे और अच्छी अच्छी बातें सोचोगे, अच्छी अच्छी बातें बोलोगे, तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस करते करते कुछ महीनों बाद या कुछ कुछ वीक्स बाद ये ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि दिस इज एक्सेस, बस मेरा हो गया। जैसे जैसे खाने का मुझे समझ में आ जाता है कि इनफ, आई एम डन, यहाँ तक आ गया खाना, आई एम डन। हम बोलते ना ऐसा जब हम बहुत खाना खा लेते हैं। तो वैसे इंफॉर्मेशन का भी धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड अ गुड लाइफस्टाइल एंड हेल्दी फूड। अगर ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ। प्लस अगर हम कंटिन्यूसली किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी बात करते रहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, हम अपनी फीलिंग शेयर करते रहेंगे। नॉट नेसेसरी हमेशा मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाओ, अपने फैमिली में ही किसी से डिस्कस कर लो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद समथिंग, विद सम डेटा और सम स्टैटिस्टिक्स, और आज मुझे बहुत लो फील हो रहा है। तो डिस्कशन इज नंबर वन थिंग। आप किसी से भी डिस्कस करो, फैमिली से कर लो या किसी काउंसलर से कर लो। तो अपने अंदर नहीं रखना है उसे, उसको पाइल अप नहीं करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट डिस्कस इट सो दैट यू राइट। आर लिटिल काम। तो जब आप ये करते रहोगे, आप अपने आप को फ्री करोगे, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, तो ये धीरे धीरे आपका हैबिट बनता जाएगा कि शेयरिंग का हैबिट बनता जाएगा। एंड देन धीरे धीरे आप आपकी लाइफस्टाइल और आपके डेली प्रैक्टिस में आप लाते जाओ। एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इतना ही बस, लिमिट, this is my limit of any information, this is limit of my Facebook, social media, WhatsApp, news channel. This is what I think. Now you throw some light on this. I would request you. या तो व्हाट आई थिंक ऑफ द सिचुएशन इज, जैसे आप बोल रहे थे, मुझे साथ के साथ थोड़ा मेरा भी दिमाग काम कर रहा था। तो हमारा क्वेश्चन, आई रिपीट, कि हमारा क्वेश्चन ये है कि एक इंसान को पता कैसे चलेगा कि उसकी लिमिटेशन क्या है? ड्रमबाज, आई Yeah. विल जस्ट कवर योर Yes. Question. एंड जो आपने क्वेश्चंस दिए वो बहुत इंटरेस्टिंग दिए, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन पर्टिकुलर, तो हम थोड़ा Yes. एंड देन वी विल Yes. बिल्ड अप आवर फाउंडेशन। Yeah. तो एक इंसान को उसकी लिमिटेशन कैसे पता चलेगी, दैट इज द क्वेश्चन। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में बहुत से अलग अलग लोग हैं और उनका प्रोफेशन अलग अलग है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिशियंस। True. देयर आर रिसर्च ओरिएंटेड पीपल, उनका काम ही ये है कि उनको बहुत ज्यादा डेटा क्रंचिंग और इंफॉर्मेशन क्रंचिंग करनी होती है। हाउएवर, सबकी कैपेसिटी कम या ज्यादा होती है, एंड आई पर्सनली थिंक कैपेसिटी बिल्ड हम कर सकते हैं अगर हमारे पास क्लियर पर्पस है। सो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, डू वी हैव द पर्पस ऑफ True. कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी आर कंज्यूमिंग? True. अगर हम Absolutely. पर्पस क्लियर है, सपोज हमें रिसर्च आर्टिकल लिखना है फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई रिमेम्बर वी बोथ ऑल्सो रोट एन आर्टिकल टुगेदर ऑन लाइफ स्किल्स। Yes. नाउ Yes. वी हैव पर्पस इन हैंड। जितना True. भी टाइम हमने दिन रात एक करके वी ट्राइड कि हम अपनी फुल कैपेसिटी में काम और डेटा क्रंच करें, इंफॉर्मेशन क्रंच करें। बट इफ वी डू नॉट हैव दैट पर्पस इन माइंड, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले एरिया में जाएगा। True. Second, something which is known as the processing power. Are we able to process the information which we are consuming? या हम इंफॉर्मेशन बस लिए जा रहे हैं, वो हमारे दिमाग में साइड में है एंड वी आर प्रोबब्ली नॉट इवन एबल टू प्रोसेस इट। तो जब हमें ये इंडिकेटर्स मिलने लग जाएंगे, इट विल बी अ वेरी नाइस फ्लैग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भैया दिस इज something which is not working. That is what I think of. And I'll just take the question Yeah. of Jana. He asked,
What are some of the steps which can be taken to prevent information indigestion? And what about factors like drastic change in lifestyle, work from home, boredom, indifference between people in the house, etc.? These are wonderful questions. And Ramaz, I'll just request you to hang on for some time because we will be addressing these questions. So let us first understand कि information indigestion exactly उससे क्या problem start होती है. Let हमें उसका एक बार समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है, then we will probably be able to understand it in a better way. Can you put some light about that? कि information indigestion क्यों खराब है हमारे लिए? What are the problems which arise from it? तो नंबर वन थिंग जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस. कंटिन्यूस नंबर्स देखना, परेशान होना डेफिनेटली स्ट्रेस को बढ़ाएगा. जी. दूसरी चीज आपकी नेगेटिव, किसी की डेथ्स हो रही है या फिर कोई हॉस्पिटलाइज है, जैसे इटली में जो हो रहा है, जर्मनी में, यूएस में हो रहा है, तो ये सब देख देख के जाहिर सी बात है हमारे नेगेटिविटी बढ़ेगी माइंड में. सो स्ट्रेस हो गया, नेगेटिविटी हो गया, प्लस कहीं ना कहीं ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है. राइट. ये रिसर्च में भी प्रूव हो गया है कि नेगेटिव थिंकिंग इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग अवर इम्यून सिस्टम. ऑलराइट. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमारे थॉट्स में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल. हमारे के तरीके में कन्वर्ट होता है, एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है. And that further get converted into probably psychosomatic issues, and they probably trickle down to our words and actions. True. Yeah. Thank you so much, Jiju, for being such a good support. Welcome, Akshay. Nice to see you. ठीक है. So हमें information indigestion का समझ में आया कि what are the issues caused by this in particular. Now let us talk about information digestion. So what are some of the steps? All right. Should we go on to the steps right now, or how do you want to take it? या सो पहले ये जान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, राइट? सोर्सेस क्या हैं? जी. तो सोर्सेस हैं न्यूज चैनल्स, राइट, एंड सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, एंड ऑल्सो न्यूज़पेपर्स, एंड फ्रॉम एनी फ्रेंड. और अगर मैं न्यूज़पेपर, टीवी चैनल सब बंद करूँ तो मेरा फ्रेंड मुझे फोन करके डेटा बता रहा है. तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मेरे पास आ ही रही है, जो एक्सेस इंफॉर्मेशन की बात चल रही है. जो इंसान ऑलरेडी परेशान है, वो ऑलरेडी ये सब देख के घबरा रहा है, लेकिन क्या करते हैं उसके दोस्त जो फ्री बैठे हैं वो उसको फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि अरे तुझे पता है इटली में इतना हो गया, अरे तुझे पता है यूएस में इतने लोग मर गए, अरे ये नहीं है वो नहीं है. सो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है. तो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट, राइट. एंड आपने जैसे सोशल मीडिया पे भी टच करा, दिस इज समथिंग व्हिच इज सो मच इन द लाइमलाइट राइट नाउ, बिकॉज ज्यादातर लोगों का अटेंशन सोशल मीडिया में है आजकल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग समवेयर, यू आर ड्राइविंग थ्रू, आप शायद बिलबोर्ड्स वगैरह ना देखो, आसपास एडवर्टाइजमेंट्स ना देखो, बट योर एंटायर अटेंशन वुड बी ऑन probably स्क्रोलिंग थ्रू Facebook or Instagram or Quora. Right. So the focus of people in general is on social media. True. And I would like to also say कि एक चीज होती है जिसको हम attention economy बोलते हैं. What this is पहले किस तरीके से हम अट्रैक्ट करें अपने कस्टमर्स को, वो एक क्वेश्चन रहा है बहुत जमानों से. Like even in our MBA we have studied about the consumer behavior, like how do we attract other people. True. Now we are concerned about social media. If we talk about social media in particular, यहाँ पे attention economy काम करता है. Like whoever is able to grab your attention can make profits out of it. So it's absolutely right. आप किस तरीके से grab कर रहे हो अपने customers को. Now people I'm talking about from the developer point of view, जो लोग बना रहे हैं चीजें, वो लोग कैसे सोचते हैं. उनका आइडिया होता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, उसका कॉग्निशन कितना है, एंड व्हाट आर द गैप्स, और वो आइडेंटिफाई करके वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रोवाइज करते हैं. आई टेक एन एग्जांपल, जैसे सबको शायद समझ में आ जाए.
गेमिंग अगर होता है, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले कैंडी क्रश इंट्रोड्यूस हुआ था. यस यस ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑन कैंडी क्रश. I probably did play it for a day or two and I found it to be very addictive. And the moment I figured that out, मैंने उसको हटा दिया था अपने फोन से. तो आइडिया इसमें ये है कि हमें लाइफ में इन जनरल वो ग्रेटिफिकेशन, वो खुशी नहीं मिलती है. वी वांट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट. एंड कैंडी क्रश में लेवल्स बनते हैं. लाइक हर गेम में लेवल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल. एंड एक लेवल से आप दूसरे लेवल में आप पहुंच रहे हैं तो यू विल find a very nice sense of achievement. Oh my god, मैंने तो एक level complete कर लिया. And मैंने इतने points कमा लिए. And you can see the scoreboard. You can see the comparison with other people, throughout the world who played this game. So वो जो temporary gratification है, वो एक अजीब सी खुशी पैदा करती है, which promotes that person to play more and more, which gets converted into addiction. And ट्रू the person does not even realize कि वो addiction में कब convert हो रहा है. This is just an example how the developers understand the psyche of the customers. क्योंकि हमने MBA में भी हमने उस साइड से ये चीजों को समझा हुआ है. It is not only how they grab attention and how, जैसे हम malls में भी जाते हैं and we go for grocery shopping. There's a basic funda about level of eye. अगर आपके eye level products है तो आप you will fetch those. पर अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे भी प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं नीचे वाले सेक्शन में. इट इज प्रॉब्ली चीपर इन प्राइस. तो वो जानबूझ के प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऐसे करते हैं कि जहाँ पे ट्रू अटेंशन जाएगा वहाँ पे वो चीज बिकेगी. So the बिल्कुल same part is on internet as well. So why I'm sharing all this is not to put blame on anybody, but to understand कि ऐसी चीजें बिकती है. And we as consumers should know these tips and tricks of how they're playing with our attention. So अगर हम if we give into it, we will probably damage our own attitude and our own mindset and how we are doing these things. तो इंफॉर्मेशन का एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि इन आर एंटायर लाइफ टाइम वी कैन नॉट कंज्यूम ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द वर्ल्ड. क्योंकि हमें किसी तरीके का फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ओ माय गॉड, आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दिस दैट. एंड देन इट्स लाइक अ reaction. So we have to understand we have to stop somewhere. ट्रू So yeah, that's a very that's one point which I would like to reiterate to drum bass. This is one of the ways जिससे हम indigestion को कम कर सकते हैं. We will be discussing some more points regarding that. So I think asking very few people are able to understand this phenomenon. Yes, Akshay, and that is the entire reason why we both collaborated and we wanted to address this thing. And this has nothing to do with only the coronavirus issue. It is ट्रू even in general. ओवरऑल या Overall, because how it affects us हमें पता ही नहीं चलता है. जब कुछ हो जाती है बड़ी चीज शायद तब हमें रियलाइज होता है कि okay, something which we should consider. So yeah, and I just wanted to share this point around social media. या एक एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी. व्हाट्सएप पे इफ यू नोटिस आधी चीजें फेक निकलती हैं. ये भी बिल्कुल सही फैक्ट है. बहुत मैसेजेस ऐसे आते हैं कि फिर नेक्स्ट बंदा कहता है ये तो फेक है, दिस इज ओल्ड वीडियो. या फिर कहीं का पुराना लॉकडाउन हो गया फिर भी 1,000 लोगों का वीडियो डाल दिया एंड पीपल आर ग्रोइंग क्रेजी. ओ गॉड, ये क्या है, 1,000 लोग क्या कर रहे हैं, व्हाई दे आर डूइंग, एंड पीपल आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय दैट. लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो 2 साल पुराना वीडियो है. Right, right, right. एक मेरे सोसाइटी का एग्जांपल है. एक मेरी नेबर है, वो शी इज अ बिजनेस डूइंग बिजनेस ऑफ सम फूड आइटम्स. तो उसका स्टॉल लगा था. अब ये लगा था 2 महीने पहले, लेकिन किसी के थ्रू वो फोटो उसको अभी डे बिफोर यस्टरडे समवन गॉट द फोटोग्राफ एंड वो सोसाइटी के ग्रुप में प्रेसिडेंट को like very annoying words ki what is this, it's lockdown and people are doing business, people are so much business oriented, money oriented कि ऐसे लॉकडाउन में भी लोग फायदा उठा रहे हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं. तो Right. बाद फिर नेक्स्ट मैसेज वाज कि किसी के पास फॉर्चुनेटली वो मैसेज था पहले वाला, तो दे पुट इट डाउन एंड सेड कि अरे ये तो इट इज नॉट लेटेस्ट, इट इज 2 महीने पुराना बिजनेस फोटो.
सो Right. ऐसा भी होता है, फेक मैसेजेस बहुत होते हैं, 80-90% तो फेक ही होते हैं, हाँ 10% ऑथेंटिक होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर चीज पे बिलीव नहीं करना है, हमें Right. ऑथेंटिक सोर्स से ही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है, नॉट फ्रॉम द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक अलग ही उसकी कोई पता नहीं कौन डीन है, एंड दे जस्ट पोर इनटू दुनिया भर की इंफॉर्मेशन उसमें डालते रहते हैं, और हम लोग बस उसको स्क्रॉल करते रहते विदाउट without knowing the authentic source. Right. Right. Absolutely. That's right. I think, hi, Snowy. She just opened the door and Oh, so great. Hi, Snowy. can come here. Okay. Anyway, so yeah, I'm sorry, I missed the point. Yes, you were talking about the fake news part, and I think it's very, Yes, very important because yes, Washington University, of course, there are a lot of areas जहाँ पे ये सब news होती है. However, it is again to do with the attention economy because people want to grab attention, and then they share. So इसका एक trick हमारा ये है, there are a lot of forward messages जो हमें true. usually people just mindlessly follow. And yes, Jiju has really pointed out very well that it is important to have our own perspective. Absolutely, क्योंकि अगर हम कुछ भी न्यूज सपोज व्हाट्सएप पे आ रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई इट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स. तो आप उसको जाइए गूगल पे, एग्जैक्टली वो न्यूज का टाइटल टाइप कीजिए, लुक फॉर द राइट ऑथेंटिक सोर्सेज. लाइक फॉर True, एग्जाम्पल, आपके पास कोरोना वायरस का स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स चाहिए, प्लीज डोंट गो टू फलाना ढिमकाना वेबसाइट, राइट? गो टू true, true, सोर्सेज, गवर्नमेंट true. साइट है, वेबसाइट है, वो जो भी WH हमारे right. वेबसाइट है, उन्हीं का डेटा आप कंसिडर बिल्कुल कीजिए. सही बात तो है. वन मोर पॉइंट विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वरना फिर हमारा एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन डाइजेशन इनडाइजेशन तो हो ही जाएगा ना, बिकॉज हम गलत चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं. दैट True. इज दैट कैन डेफिनेटली. एंड आई टेक वन मोर मोमेंट, वेलकम निमिश and Tamil Nadu K3 AV. All right, difficult names, इतना मुश्किल नाम हैंडल करना तो Instagram के. Thank you so much. Welcome all of you once again. Welcome Tushar. How are you doing? So yeah, great. And also, I would just like to add this one term, which is information filtration. जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल चाय भी बनाते हैं, then Hmm. we have all the ingredients inside it. चाय Right. होती है, but then we don't consume it with the chai patti, right? We True, filter true, it, true. remove what is not required. In the same Absolutely. way, filtration unfortunately is not available on media. It is not available with the reporters. It is not available with Arnab Goswami and correspondents or anchors like that. But Yes. this filter needs to be applied over here with ourselves. हमें वो चीज लेनी है which is important for us, which is relevant, which is useful, and let other things be. You don't have to push them outside. वो देखिए, वो फालतू इंफॉर्मेशन जो आपके लिए अभी है, वो बाद में शायद आपके ही काम आ सकती है. So don't throw it away, but take in whatever is required for you. This is very, very important. बिल्कुल. Thank you, Shraddha, for your thumbs up. Right. Shraddha is again a family friend. Hi, Shraddha. Yeah, Thank you so much for joining in, Shraddha. आप भी अपने yeah. opinion दे सकते हैं if you Yes. disagree with any of our points, because we're just trying to bring into light some important issues जो हमें लगता है relevant है. बाकी हम Yes. सब opinion अपना अलग अलग हो सकता है. आप प्लीज हमें बिल्कुल. बताइए if you think if this is making sense to you. Yeah. सो अब हम इस पे हाईलाइट करते हैं कि इंफॉर्मेशन कंज्यूम कहाँ से करनी है, राइट? ऐसा तो नहीं कर सकती पूरा पूरा वर्ल्ड बंद कर देंगे, ऐसे ऐसे आइसोलेशन में चले जाओ, बुद्धा बन जाओ, ऐसा नहीं कर सकते, सन्यासी बन जाओ. इंफॉर्मेशन तो जरूरी है, राइट? Right. लेकिन 4 मेन पॉइंट्स हैं इसके कि इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करो, लेकिन नंबर 1 ऑथेंटिक सोर्स से करो. दूसरा लिमिट में करो. ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे आप देख रहे हो, आप 15 मिनट्स देखो, 15 मिनट्स मॉर्निंग में देखो, सो दैट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा एंड यू विल बी अपडेटेड. एंड देन उसके बाद है कि आप ये देखो कि
किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देख रहे हो? क्या आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही देख रहे हो, क्या आप नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स देख रहे हो? क्योंकि जितने लोग कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन रिकवर भी काफी लोग हो रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ठीक भी बहुत लोग हो रहे हैं। इटली में अभी 900 लोग ठीक भी हो गए। तो हमें सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव न्यूज नहीं देखनी है, वी शुड बी कंज्यूमिंग नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो ये दिस इज माई थर्ड पॉइंट, Right. कि मिक्स न्यूज देखो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से ही आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स देखोगे तो यू विल बी बैलेंस्ड। Okay. एंड आप अपने इंटरेस्ट एरियाज की चीजें भी देखो, सिर्फ न्यूज चैनल्स या व्हाट्सएप कोरोना कोरोना मत देखो। आप अपने इंटरेस्ट की चीजें देख सकते हो। जो आप लॉकडाउन है, आप अपने घर पे हो, तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। एंड मेडिटेशन कर सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकते हो, और कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, या कुछ 90s के सॉन्ग्स देख सकते हो। जो मैं देखती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब 90s के सॉन्ग सुनती हूँ। रियली आई रियली एंजॉय इट। तो आप अपने बचपन के कुछ सॉन्ग्स देख सकते हो। एंड सिंस अभी दूरदर्शन पे रामायण महाभारत शक्तिमान भी आने लगा है तो जिसको जिसको बचपन 90s के 80s के जो किड्स है, उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग। तो वो अपने बचपन की मेमोरीज रिलिव कर सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं ये सब देख के। तो आप एकदम नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहोगे, आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी अपने अंदर डाल के हैप्पी रह सकते हो। Right. अपने इंटरेस्ट की चीजें देखो। About positive affirmations, because this is something which you've been working upon from quite some यस time. I यस think यस। take that into consideration as well. थोड़ा सा positive affirmation and positive attitude की importance क्या है, इसके बारे में अगर बिल्कुल। आप बताएं। आज की डेट में, इन इन टुडेज टाइम्स, पॉजिटिव रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव रह के, ना कि मैं सिर्फ खुद का तो बेनिफिट कर रही हूँ, प्लस पीपल अराउंड मी आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड। अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव बोल रही हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो फैमिली सर्कल में है, तो दे ऑल्सो थिंक कि वाओ, कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप पॉजिटिव बातें करते हो। ये मुझे हम पे डिसाइड करता है कि आपको नेगेटिव बातें करनी है कि पॉजिटिव बातें करनी है। यू हैव टू एम्पावर योर माइंड, एंड इट इज नॉट इजी। ये भी प्रैक्टिस से आता है, ऐसे कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही बोलना है, पॉजिटिव ही सोचना है। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन डू दैट। पॉजिटिव थिंकिंग आती है काम माइंड से। काम माइंड कैसे आता है? मेडिटेशन से, एंड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, एंड पॉजिटिव थिंकिंग आती है अच्छी अच्छी बातें बोलने से, अच्छी अच्छी पॉजिटिव कोट्स पढ़ने से, या फिर कुछ ऐसा जो मेरे लाइफ में पॉजिटिव हुआ है उसके बारे में सोचने से, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, ऑफ कोर्स ड्रमबाज, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करने से, इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ता है और हम और पॉजिटिव होते हैं। Right, right. I think positive affirmations are also something which is required currently, True, right now. true. Even in general, it is very, very important. However, I just want to discuss a little bit further about positive information and negative information versus relevant information and irrelevant information. True. क्योंकि for example, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम किस चीज को बोल सकते हैं और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम किस चीज को बोल सकते हैं. Probably the negative information is relevant for somebody, probably a mental Might be, a yeah. medical professional who's working in that field, उसके लिए True. वो relevant है, तो उसको वो नेगेटिव, सो कॉल्ड नेगेटिव न्यूज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ डील करना ही पड़ेगा दिन और रात. सही तो बात है। उस ये जो चार कैटेगरीज है, डू यू वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, relevant information and irrelevant information. वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। Yeah. So do ऑफ you want to कोर्स, tell something? कुछ हो सकता है मेरे लिए कुछ पॉजिटिव हो, और किसी डॉक्टर के लिए वो पॉजिटिव हो, राइट? और हो सकता है मेरे लिए वो नेगेटिव हो और किसी डॉक्टर के लिए वो, मतलब ये हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। तो सब लोग अलग अलग सोचते हैं और सबका प्रोफेशन अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, वो मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव नेचर से आती है। और पॉजिटिव रहना, इट्स अ चॉइस, इट्स माय चॉइस टू स्टे पॉजिटिव।
Right. देर इज नो वन टू टेल कि प्लीज स्टे पॉजिटिव, आप रहो पॉजिटिव बोलते बोलते, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है पॉजिटिव का, अगर मैं नहीं चाहती, आई वांटेड टू बी इन माय स्पेस नेगेटिव थिंकिंग, तो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी। तो पॉजिटिविटी इज अ चॉइस। अगर आप चाहते हो फॉर मेंटल वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अगर आप चाहते तो आप पॉजिटिविटी फॉलो करो, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो, ग्रेटफुलनेस फॉलो करो, ग्रैटिट्यूड फॉलो करो। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। Right, that's fine. Okay, so coming back to information digestion, जो हमारा main topic है, and if we look at information, how to digest it properly, I personally think it is very important to have that time period to digest the information. For example, अगर हम कुछ खाना भी खाते हैं, we don't keep eating 24 hours. We eat one meal, then we have ट्रू। probably 6 to 7 hours of fasting, if you may call it. मतलब हम और कुछ नहीं खा रहे होते हैं, probably सिर्फ पानी पी रहे होते हैं. But we let our organs digest that food first. And the moment that meal gets digested, हम वो दूसरी information फिर sorry दूसरा meal जो है वो हम intake करते हैं. ट्रू। So can we say कि exactly same model हमारा information के साथ valid है कि हम पहले कुछ information consume करते हैं and then we take some time to first digest it properly and then एब्सोल्युटली। we again move on to the second piece. Otherwise अगर हम information लेते ही जाएंगे लेते ही जाएंगे ओवरलोड। लेते ही जाएंगे और टाइम नहीं देंगे उस चीज को तो शायद information overload हो सकता है. What is your take on this? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है ये। इंफॉर्मेशन लो, आप लो, स्टैटिस्टिक्स देखो, इटली में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, उसके बाद टेक अ ब्रेक, जस्ट जस्ट रिलैक्स, जस्ट प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन कि अच्छा ठीक है, अब मैंने ये कर लिया, अब मैं कुछ और काम में अपना टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, या कुछ गार्डनिंग कर लेता हूँ, या कोई लाइट म्यूजिक सुन लेता हूँ। तो तब तक क्या हो गया, वो प्रोसेस नीचे आ गई, वो डाइजेशन लेवल पे आ गई, और अब आप वापस से फ्रेश हो इवनिंग में भी, एंड देन अगेन आप वो न्यूज देख सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन बस, तो आपको ओवर डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन नहीं होगा। तो Right. इसको एक लिमिट में रखो, और उसको ऑथेंटिक सोर्स से लो, एंड उसको लिमिट में रखो। 15 मिनट्स, 20 मिनट्स इनफ है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए। 20 मिनट्स इज इनफ। Right. So that was with respect to the news specifically. But अगर हम students को भी साथ में लेके चले and professionals को भी साथ में लेके चले, for example, from students' perspective, they have to study a particular subject and they have syllabus in their hand or exams are proceeding. उस केस में भी ये सेम जो फॉर्मूला है वो वैलिड है कि अगर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, वी मस्ट टेक अ ब्रेक सो दैट वो चीज जो है वो सेटल डाउन हो जाए हमारे अंदर एंड देन वी अगेन कम टू द सेम सब्जेक्ट एंड वी बेटर एबल टू हम बेटर उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसको बोलते हैं. सो आई थिंक बिल्कुल। इस फॉर्मूला स्टडीज में भी वैलिड है और प्रोफेशन बिल्कुल। में भी वैलिड है. जब हम कुछ बिल्कुल। वी आर एक्सट्रीमली इन्वॉल्व विद इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्रंचिंग पार्ट्स बिकॉज वहां पे सैचुरेशन पॉइंट बड़ा जल्दी आ जाता है, इंसानों का एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है. एंड या एंड आई थिंक आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड यहाँ पे कि क्रिएटिविटी का प्रोसेस अगर हम उसकी बात करें, बिकॉज वी से दैट एवरीबडी इज वेरी क्रिएटिव एंड क्रिएटिव skills are something which is required almost in all the professions. प्रोफेशन है या नहीं है, अगर हम इंसान है तो हम क्रिएटिव होते ही हैं. हम कुछ भी काम करते हैं हम चाहते हैं उसको एक अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से हम डिलीवर कर पाए. तो इंक्यूबेशन सॉरी क्रिएटिविटी का जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है उसमें इंक्यूबेशन टाइम इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले होता है हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टास्क के लिए, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड हम कुछ एक नया कुछ सपोज एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं. फर्स्ट इज प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग. हम इंफॉर्मेशन सब कुछ लेकर आएंगे, रिसर्च करेंगे, लोगों से पूछेंगे क्या इश्यूज आते हैं, वो सब कलेक्ट करेंगे, कितना फीजिबल है इस चीज को कैरी आउट करना, हम वो सब चीजें कलेक्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप इसका होता है इंक्यूबेशन टाइम, जहाँ पे हम वो इंफॉर्मेशन लेकर हम अलग हो जाएंगे उस चीज से, उस सही बात। स्टेट से अलग हो जाएंगे. देन थर्ड होता है जिसको हम यूरेका मोमेंट बोलते हैं, जहाँ पे हमारा इल्यूमिनेट होते हैं, हम अचानक से एकदम से हमारे दिमाग की बत्ती हो जलती है कि ओ माय गॉड दिस इज समथिंग आई नेवर थॉट ऑफ, वो वाला टाइम होता है. एंड देन उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं. फोर्थ स्टेप इज इवेल्युएशन, जहाँ पे हम
एनालाइज करते हैं क्या ये सच में पॉसिबल है, क्या मार्केट इस चीज के लिए रेडी है, क्या जो सोल्यूशन मैंने सोचा है क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता. एंड द फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे हम वो चीज इम्प्लाई करते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू फोकस हियर इज द सेकंड स्टेप विच इज इंक्यूबेशन पीरियड. अगर ये इंक्यूबेशन पीरियड हमें नहीं मिलेगा ना, क्रिएटिविटी कभी आ ही नहीं पाएगी. एंड दिस इज यू नो whenever we are doing something we want कि हम उस जगह से एक बार हट जाए. Why? Because we want to give our mind some time to process what has been happening. Like I have come up with a beautiful term which is pause ability, the ability to pause. हम True. लोग पचासों चीजों की एबिलिटी करते हैं, बट कैन वी रियली पॉज? बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज पूरे टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं कामों में, उनका उनका बस माइंड सेटल ही नहीं होता. दे कांट सिट स्टिल फॉर 2 minutes. जिसको हम प्रोबेबली देयर इज अ डेफिशिएंसी इन अटेंशन, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव जिसको बोलते हैं. बच्चों में भी हम्म. होता है, स्टूडेंट्स में कंसीडर करते हैं. उनको बिठाना एक जगह पे, टू लेट देम पॉज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. सो आई थिंक इंक्यूबेशन टाइम, या उसको पॉजिबिलिटी, या उसको हम सेटलिंग डाउन द इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ कहें, ये जरूरी तो बहुत ज्यादा है. आई थिंक दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प विद इंफॉर्मेशन डाइजेशन एज वेल. Thank you, Shraddha, for the thumbs up, and many, many welcomes, Arjit Singh, my soldier. We'll probably do a live together sometime soon, Arjit. Welcome. So, yeah, would you like to share some of your incidents on that? अगर I'm sure आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके एकेडमिक्स में, because you've done so many degrees, आपका कभी एक पॉइंट तो आया होगा जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया होगा. What did you do around that time? आपने how did you get out of that zone? मेरे प्रोफेशनल फ्रंट पे आया था एक बार व्हेन आई वाज वर्किंग इन नेशनल सेंटर फॉर एडोलेसेंट न्यू दिल्ली. वहां पे इतना काम दिया जाता था. एंड सिंस यू नो दैट जो हमारे बॉस थे वो एक्स जॉइंट कमिश्नर थे, तो पुलिस वाले के अंडर काम करना बहुत बहुत हेक्टिक था. एंड सिंस हमारे केबिन्स होते थे और वो हर 10 मिनट में पूछते थे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. बहुत प्रेशर में काम करवाते थे. मतलब वो पहला टास्क कंप्लीट होने के वेट से पहले ही दूसरा टास्क दे देते थे, दूसरा टास्क के होने से पहले तीसरा टास्क दे देते थे. और I फिर hope जब हम you're not watching this. आई होप नॉट. तो जब हम लोग फोर्थ टास्क करते थे तो वो फर्स्ट टास्क का रिपोर्ट मांगते थे. तो वी सेड कि सर अभी तो हम कर रहे हैं, हमें मौका तो दीजिए, हमें टाइम तो दीजिए, आप कितना ओवरलोड कर रहे हैं काम को. तो मेरे अभी Right. तक की लाइफ में सबसे ज्यादा ओवर बर्डन मुझे वही लगा, उसी टाइम पे लगा जब बहुत सारा ओवर 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 ओवर, ये करो वो करो, ये करो वो करो. एंड करने वाला कोई नहीं है, आप अकेले करने वाले हो. बात आपको करनी है, सारी चीजें आपको करनी है, रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, काउंसलिंग आपको करनी है. तो वो जो फेज था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे ही सिंगल पर्सन, अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन नो डाउट एंड थैंक्स टू दैट टाइम, कि उस टाइम ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे अकेले ही सब कुछ करना है. खुद ही सेटअप करना है, खुद ही सेंटर सेटअप करना है, या कोई टीनेजर्स का क्लब सेटअप करना है, या काउंसलिंग करना है, या कोई बच्चे नहीं मिले तो बेगर्स को ही लेके आ गए कि भैया आप तो चलो, कोई समर कैंप में आया नहीं तो साईं बाबा के टेम्पल से 3-4 बेगर्स बच्चे को ही ले आए कि चलो यहाँ पे जीवन जीने की कलाएं सिखाई जा रही है, लाइफ स्किल सिखाई जा रही है, तो आप लोग आइए. तो वो जो एक जो लर्निंग फेज था, बहुत प्रेशर भी था, लेकिन उस चीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. टाइम मैनेज करना सिखाया कि मुझे इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है. और ऑफ कोर्स विद सर्स गाइडेंस और माय फैमिली सपोर्ट मैं वो कर पाई. और स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो चीजें टारगेट फिनिश करती गई. और उसने मुझे भी एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ. और इसीलिए फिर मैंने अपने लाइफ में भी वो चीज आगे उस चीज को बढ़ाया ऑन माय होप एंड हैप्पीनेस. Right, right. So आपका situation I think उस टाइम पे ये था that you यस. fought with the situation and you tried to ट्रू. find out solutions for it, and you didn't run away from नो. the नो. information overload or the बिल्कुल. overload of work on you.
And of course, you've done brilliant work over there. I still remember you were like a one-woman army managing so many things all at once. And it indeed takes a lot of courage and constant energy, I would say. मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रू. just one fine day you're at your peak and then the other day you don't feel like working. So you're सही constant सही in that enthusiasm mode. सही And बात है. many congratulations for pulling it through very nicely. थैंक यू. थैंक्स अ Yeah, लॉट. yeah, that's great. All right. So, but फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी इंसान है से प्रोफेशन में है या रिसर्च पीएचडी स्टूडेंट स्पेसिफिकली बिकॉज पीएचडी स्कॉलर्स आर पीपल हु एट टाइम्स गेट अ लिटिल ओवरवेल्म्ड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर हेड एंड I have constantly heard from all the PhD students कि PhD scholars कि बस ये टाइम निकल जाए किसी तरह it is like a struggle which we can understand from दूर से हम empathize कर सकते हैं but they only know how much energy and blood and sweat they put into that research. हमें तो एक छोटे से रिसर्च पेपर ने रातों की नींद उड़ा दी थी आई बट नो. पीपल वर डूइंग पीएचडी एंड पीएचडी के बाद चलिए पीएचडी हम 5 साल तक मैक्सिमम मान लेते हैं कि 5 साल एक इंसान दे रहा है बट पीपल इन्वॉल्व इन रिसर्च रिसर्च. completely. Right now also there are a lot of medical professionals who are day in day out working with these things and ट्रू. उनका इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो हमें लगता है कि हमारे लिए ये थ्रेशोल्ड है हमारा उनका शायद वो थ्रेशोल्ड डबल ट्रिपल होगा ट्रू. राइट बिकॉज कैपेसिटी सबके अलग अलग होती है एंड हमें शायद इतनी सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करके हम थक जाते हैं बट उनका ये रोज का है every day they're dealing with all these things. So, talking about the average person who is involved in say research, अगर हम PhD का for example लेते हैं, आपकी एडवाइस उनके लिए क्या रहेगी if they feel overburdened with a lot of information or if they feel कि अब मुझसे और पढ़ा नहीं जा रहा है या मुझे और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रही है पढ़ा जा रहा है बट आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑफ रिव्यू इज समथिंग विच इज सुपर सुपर ह्यूज and you have to go through so many research all together and then you have to understand कि क्या takeaways है gaps identify करने हैं तो आपका एडवाइस उन लोगों के लिए क्या रहेगा how should we manage this information digestion or indigestion. या वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. सो जो पीएचडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड तो है ही कि अब हमने मास्टर्स कर लिया, एमफिल कर लिया, अब हम पीएचडी कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल है और बहुत रिसर्च करना है, बहुत रिव्यू लिटरेचर पढ़ना है, बहुत अलग अलग केस स्टडीज पढ़नी है, फॉरेन जर्नल्स पढ़ने हैं. तो एक प्रकार से जब वो पीएचडी का फॉर्म भरते होंगे, पीएचडी में एडमिशन लेते होंगे, किसी प्रोफेसर के अंडर काम करते होंगे, उनका माइंड मेकअप तो होगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे एक एवरेज जनता से डबल मेहनत करनी है. तो उनको मेंटली प्रिपेयर तो वो लोग तभी हो जाते हैं, तभी उनको डॉक्टरेट चाहिए, डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, तो उनके लिए एक मोटिवेशन होता है कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है जल्दी से जल्दी. अगर मेरे पास 4 साल है, 5 साल है, तो मुझे जल्द से जल्द अपने टाइम से फिनिश करना है ताकि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट किसी संस्थान में एज अ कंसल्टेंट काम कर सकूं. तो ये सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है. उनको ये देखना चाहिए कि अगर मैं एवरेज जनता से अलग हूँ, मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए और मेरे अंदर वो स्पिरिट है काम करने की कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, तो वो उनके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए. और वो किसी कंसल्टेंट या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे लो लग रहा है या मुझे अभी रिसर्च में मन नहीं कर रहा है, मैं कहाँ फंस गया, ये मैंने क्या सरदर्दी ले ली, पीएचडी क्यों करना है. तो ऐसे टाइम पे उनको अपनी बात शेयर करनी चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन लूजन अप होना चाहिए और टेक अ ब्रेक. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत ओवर बर्डन हो गया, मैंने जर्मनी की जर्नल्स पढ़ लिए, मैंने स्पेनिश पढ़ लिया, मैंने इटालियन पढ़ लिया, मैंने बहुत बहुत रिसर्च पढ़ लिया, तो टेक अ ब्रेक, जस्ट टेक अ वॉक या फिर आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हो या फिर कुछ ऐसे लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरीज देख सकते हो या फिर कॉमेडी बुक पढ़ सकते हो कि जो आपके रिसर्च जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा रिलैक्स फैमिली के साथ आउटिंग कर सकते हो. तो काफी चीजें हैं लूजन अप करने के लिए, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने वो काम उठाया है और आपको वो फिनिश करना ही पड़ेगा.
क्योंकि डूइंग डॉक्टरेट इज नॉट एट ऑल इजी, उसके लिए बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, आप किसी के अंडर पीएचडी कर रहे हो तो आपका कोई गाइड होंगे, कोई सुपरवाइजर होंगे, कोई प्रोफेसर होंगे। तो कंटिन्यूस कनेक्ट विथ योर सुपरवाइजर, क्योंकि वो भी ऑलरेडी एक पीएचडी होंगे, तो उनसे कनेक्ट करना कि सर जब आप पीएचडी कर रहे थे आज से 20-30 साल पहले, और आपने क्या रोड मैप फॉलो किया, आपने आप अपने मोटिवेशन के लिए क्या करते थे, तो वो सुपरवाइजर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। Right, right, right. I think that's very important. And this reminds me of a beautiful quote from Plato. He says that all learning has an emotional base. So what he means is कि हम सीख सब सीख तब पाते हैं जब हमारा emotional base strong होता है. ट्रू। And I think this is something which even you pointed out कि जब हम exert हो रहे हैं या हम if we are not in the right frame of mind, तो हमारी learning हो ही नहीं सकती है, as simple as बिल्कुल that. हमारा बिल्कुल। information overload भी होगा उस time में, even if the information is positive. ट्रू ट्रू। हमारा information overload, the moment वो information overload हो गया, that person will not be able to take in more information. बिकॉज तो एब्सोल्युटली। कुछ लोग, जैसे आपने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किया, एक आपका केस जो था जहाँ पे एक इंसान ओवर सेंसिटिव है, यस। जब वो ओवर सेंसिटिव वाले फेज में होता है, व्हेन ही इज नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ टेक इन मोर इंफॉर्मेशन और इमोशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में थोड़ा परेशान है, ही नीड्स दैट ब्रेक। उस टाइम पे उसको इन्फॉर्मेशन, अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, it will be as bad as negative information, because when we are overwhelmed, उस टाइम पे जब हमारे इमोशंस हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं, उस टाइम पे कुछ भी चीज काम नहीं करती है। एंड राइट। वुड ऑल्सो लाइक, मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आया कि हम जब स्कूल सेटिंग की बात करते हैं, स्कूल सेटिंग में टीचर्स और पेरेंट्स का स्पेशली बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारा बच्चा ना पढ़ नहीं रहा है, उसको देखो फलाना ढिमकाना, उनके बच्चे तो दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, उनका कंपैरिजन। हाँ कंपैरिजन प्लस उनकी कैपेसिटी तो देखो ज्यादा है, हमारे बच्चे की कैपेसिटी कम है। स्कूल सब लोग सेम टाइम के लिए जा रहे हैं, टीचर्स सेम है, सेटिंग सेम है, सारे इक्विपमेंट सारी फैसिलिटीज सेम दी जा रही है, बट एवरीबडी परफॉर्म्स डिफरेंटली। हर स्टूडेंट अलग तरीके से परफॉर्म करता है उस सेम कंडीशंस में। यहाँ पे हमें लर्निंग स्टाइल और टीचिंग स्टाइल को समझना बहुत जरूरी है, सो दैट इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, इंफॉर्मेशन इंडाइजेशन ना हो। ट्रू। सो ये चीज हम स्टूडेंट्स का भी, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, आई एम श्योर यू ऑल्सो डन अ लॉट यस। ऑफ काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स, और आपने यस। ये पॉइंट देखा होगा कि हमारा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। आई इट बिल्कुल। इज इम्पोर्टेंट, फर्स्टली वेरी आई नो इट कॉमन। इज इम्पोर्टेंट, बट हमारा मन नहीं लग रहा है। और अगर मन नहीं लगेगा ना, अगर उसको कुछ चीज पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कहीं और से भी मिल रही है या एकेडमिक के थ्रू मिल रही है, वो जाएगी उस एग्जैक्टली उसी कचड़े के डब्बे में, दिमाग में, जहाँ पे कोई भी और इन्फॉर्मेशन जाती है। So I think it is very, very important for teachers, parents, and students as well to बिल्कुल। understand that we all are different. हम ट्रू। सबकी लर्निंग स्टाइल अलग है, और टीचर्स को और पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है समझने कि की हमारा जरूरत। टीचिंग स्टाइल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, इट शुड ट्रू नॉट बी अकॉर्डिंग टू हाउ वी वर बॉट अप, ट्रू हाउ ट्रू। हमने कैसे सीखा है, वो जरूरी नहीं है, पर उस बच्चे के लिए क्या जरूरी है, हमें वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। Like I remember even I was discussing with Sunaina around these lines, and बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है कि उनके खुद के बच्चे जो हैं, अगर उन्होंने दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट particular subject in one style of learning, and the moment they change the style, immense improvement has been seen. जरूरी नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर घुसकर ही उसको सिखाना। अगर सही एक बात कान है। को पकड़ सकते हैं, उस कान को घुमा के भी ऐसे भी पकड़ सकते हैं, राइट? इट्स द सेम फंडा। एंड लर्निंग स्टाइल्स इतने सारे हैं, जो अभी इतनी सारी रिसर्च हो रही है। हमारे मोंटेसरी इट्स कमिंग इनटू प्लेस हमारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल लेवल पे। अब तो हम डिजिटल जो जितने भी गैजेट्स वगैरह है, स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं अलग अलग तरीके से। बट देन अगेन, दोज स्मार्ट क्लासरूम जहाँ पे हम एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगा लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सीख जाएगा। सही दैट इज बात अ है। रॉन्ग नोशन दैट पीपल हैव कि अरे वो स्कूल में तो स्मार्ट क्लासरूम है, प्रोजेक्टर और वो सब कुछ है। पहले के जमाने में जब गुरुकुल सिस्टम होता था, वहां पे कोई इक्विपमेंट नहीं होते थे, ट्रू। वहां पे दरी लगा के सब बच्चे नीचे बैठते थे, बट लर्निंग बहुत कमाल की होती थी। तो बिल्कुल। इक्विपमेंट आर हेल्पफुल, बट
they are not the only drivers True, of learning. And true, learning true. style का सबका अलग है. Yes, बिल्कुल. absolutely, Rambas. We have Absolutely been right. learners, and I would also like to add कि ये वाला एक रिसर्च आया है जिसमें VAK को इन्होंने इम्प्रूव करके VARK कर दिया है. So we have a fourth learning style as well. Visual is, okay, we will have to end this live session for some time, and we will come back again in a minute or two because Instagram has a time limit. So I think we've Sure, exceeded 1 hour. sure, sure. So, yeah, we'll just be back in a minute or two and we'll see Yeah, you on the other side. Yeah, sure, thank sure. you. Yeah, yeah. Join in again, Thank you. guys. Yeah, yeah. Please join again. Yeah. Hello, everybody. Welcome back. Who all alive? Hi, Disha. Welcome. Hi, Mrinalini. Welcome. We came live once again because I think there was a time limit in the previous one. And all right, I'm going to invite Pranalini. Yeah. Hi. Hello everyone. Hi. So, हम लर्निंग स्टाइल्स की बात कर रहे थे. yeah. So learning style में हम I just wanted to add कि should we wait for Rambaz also to Yes, join in? he's there. He's there. Yeah. Join in. Hi Rambaz. So I was just adding to the VAK model that you specify. Recently there's a research जो VARK हो गया इसका. Visual is something जो बच्चे visual से सीखते हैं, which देख is सकते हैं. to do with the graphics and probably animation and all these things. A is something which is auditory. There are a lot of people who listen and they can remember. They have better retention around that. So people who are more into podcasts and people who are more into music and all these things, वो हमारा ए में आता है. देन के इज काइनेस्थेटिक्स वेयर पीपल आर इन्वॉल्व. बॉडीली काइनेस्थेटिक्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में भी इंक्लूडेड है. एंड के इज टू डू विद पीपल हु आर ऑलवेज ऑलवेज गेटिंग इन्वॉल्व. जैसे हम रोल प्ले करते हैं बच्चों के साथ, होते हैं कि हम गेम खिला रहे हैं एंड गेम के साथ साथ कुछ कैलकुलेशंस और अल्फाबेट्स और ये सब कर रहे हैं. फ्लोर गेम्स जैसे होते हैं, फ्लोर गेम्स में स्नेक्स एंड लैडर होते हैं, वहां पे हम काइनेस्थेटिक स्किल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं. बच्चे वो चीज ज्यादा रिटेन कर पाते हैं. देन Right. model which I wanted to add is R, which is the read and write. There are a lot of people who read and write में होते हैं, जो वो टेक्स्ट बुक्स लेके बैठते हैं and they probably make small little notes on the side of the book. They are more involved in making new notes. The moment they are able to make new notes, जब वो read and write वाला जो फंडा होता है उससे उनकी रिटेंशन बहुत स्ट्रांग होती है. Now, अगर हम ये 4 मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड, इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान एक ही मॉडल या एक ही टाइप ऑफ स्टाइल रखता है. एक बच्चा Right. 2 स्टाइल को फॉलो कर सकता है या चारों में भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है. बिल्कुल. We have to understand उस बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है. एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर आई वुड लाइक टू से, अगर हम क्लासरूम सेटिंग में कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल दीज 4 थिंग्स टुगेदर. क्योंकि अगर हम एक ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, देयर आर सपोज 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, we cannot segregate them on the basis of their learning style, and we can't say कि अच्छा ये वाला ग्रुप सिर्फ विजुअल पे करेगा, ये वाला ग्रुप सिर्फ ऑडिटरी पे फोकस करेगा, ये काइनेस्थेटिक और ये रीड एंड राइट. तो जिस तरीके से क्लासरूम सेटिंग में हम काम करते हैं, टीचिंग स्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमें सारी चीजें इन्वॉल्व करनी है सो दैट जिसको जो पिक हो रहा है वो पिक कर ले. फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी हम रोल प्लेस कर रहे हैं, कभी कभी हम आजकल बहुत इंटरेस्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज आ गई हैं विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑगमेंटेड लर्निंग, 21st century skills. Brilliant researches are happening there and people are coming up with very interesting fundamentals. The entire classroom setting can be changed, like visually more appealing. And वहाँ पे अगर हम कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ एनिमेशन दिखा रहे हैं, वहाँ पे ऑफकोर्स ऑडिटरी और विजुअल कवर हो ही रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स थोड़ा थोड़ा अगर हम इन्वॉल्व करके चलें तो लर्निंग एज अ होल एक एनवायरमेंट बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है. एंड इट इज लाइक एन इकोसिस्टम. इट इज नॉट कि अगर सिर्फ एक टीचर अच्छी है और बच्चों के पेरेंट्स आर नॉट दैट स्टूडेंट, then the learning can't happen. और अगर वाइस वर्सा है, अगर टीचर ही खराब है
पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लर्निंग हम्म, कर सकते हैं, इट्स एन इकोसिस्टम। तो बच्चे को खुद भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास भी शायद आई रिमेम्बर कुछ केस आया था, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं कैसे पढूं। सही सो बात। इफ द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ नोज कि मेरा लर्निंग स्टाइल ये है, तो मैं हम्म, इस इंफॉर्मेशन को अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से चेंज करके आई कैन रिटेन इट इन अ बेटर वे. So I think that is something I just wanted to add, since he mentioned about VAK model, या and this is something which can help at even ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, बिकॉज जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं किसी बिजनेस प्लान के लिए, B2B, even in sales for example, yeah, of course we can't kinesthetically involve that person, but VAR is something which we can target, or specifically VNA. So ये सब चीजें, I think it helps in all the dimensions wherever we are working or if we are studying. So yeah, I just wanted to add that. Hi, Chitwan. Hi, Vaishnavi. Welcome. Sci-fi, mental health. Hey, thank you so much for joining in. It's my pleasure that you've joined. Sci-fi is a wonderful organization working towards mental health, वाओ। and it is headed by Jigyasa. Thank you so much. Yeah. Would you like to add something on that, Naranji? So just to sum up, है Yeah. ना, information, we talked about information, we talked about excess information, information loading, and we talked about कि इंफॉर्मेशन कौन से सोर्स से आ रही है, ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है कि जस्ट ऐसे किसी अनऑथेंटिक सोर्स से आ रही है। हमें क्या Right. करना है, हमें एक तो अपनी टाइम लिमिट करनी है न्यूज जी. चैनल्स को देखने की, व्हाट्सएप देखने की या स्टैटिस्टिक्स देखने की। हमें एक टाइम लिमिट करनी है कि हम सिर्फ 15-20 मिनट्स ही देखेंगे, बाकी हम अपना नॉर्मल दिनचर्या फॉलो करेंगे। हम न्यूज के पीछे या स्टैटिस्टिक्स के पीछे फुल डे अपना वेस्ट नहीं करेंगे। Right. दूसरी चीज, हम अपने आप को, अगर हम एक कभी किसी पॉइंट पे ओवरलोड हो भी रहे हैं, तो हम हमें समझना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज द लिमिट। तो Hmm. ये कैसे समझेंगे, ये हम समझेंगे अपने प्रैक्टिस से, अपने डिसिप्लिन से। और उसके बाद जब मुझे समझ में आ रहा है कि अब मुझे टीवी स्विच ऑफ करना है, सो ये मुझे अपने आप को, मेरे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये ज्यादा हो गया, मुझे टीवी स्विच ऑफ करके अपना मेडिटेशन करना है या गार्डनिंग करना है या वॉक करना है। तो Right. उसके बाद हमें फेक न्यूज़ेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स पे ध्यान देना है। हमें WHO की वेबसाइट देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख सकते हैं फॉर द एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स। Right. दूसरा, हमें जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज को, जल्दी से रिएक्ट नहीं करना है। ओके, दिस इज अच्छा, यूएस में ऐसा हो गया, ओके फाइन, तुरंत रिएक्शन नहीं देना, ओ शिट, ओ गॉड, ओवरवेलम नहीं होना है किसी भी न्यूज से। Right. और जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और अपना ऐसी चीजें करनी है जो मेरी इंटरेस्ट की हो। सिंस हम अभी लॉकडाउन में हैं, तो हमें वही चीजें करनी है जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे जाना ना पड़े, मेरे घर में बैठे बैठे ये काम हो जाए। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट, जो आप अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज अगर कुछ कर सकते हो, अपना म्यूजिक परस्यू कर सकते हो, डांस परस्यू कर सकते हो, अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हो। किसी को अगर 1-1 घंटा 2-2 घंटा मेडिटेशन करना पसंद है, तो वो अभी कर सकता है। आपको ऑफिस नहीं जाना, आपको ट्रैवल नहीं करना, आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना। so this is the best time to practice and to find the purpose of your life, to purpose of your goal। और Absolutely. बोर हो, और जो लोग बहुत बोर हो रहे हैं, मैं उनके लिए एड्रेस करना चाहती हूँ। बहुत लोग आजकल बोर हो रहे हैं, अरे यार मैं बोर हो गया, ना मूवी देखने पा रहे, ना मॉल जा पा रहे, ना मार्केट जा पा रहे, नए फ्रेंड्स के साथ टपरी बाजी करने को मिल रहा है। तो इट्स सो बोरिंग, इट्स सो बोरिंग। तो जो लोग बोर हो रहे हैं, जिनको बोर्डम हो रहा है, उनके लिए मैं एक छोटा सा सजेस्ट कर, Sure. मतलब एडवाइस नहीं करूंगी, सजेस्ट नहीं करूंगी, जस्ट एक अपना व्यू बता रही हूँ कि अगर आप बोर हो रहे हैं, तो आप शांत बैठिए, आप जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, एंड आप वापस अपने चाइल्डहुड में जाइए। और आप, ऐसा कभी हुआ होगा स्कूल में या कॉलेज में या वर्किंग एनवायरनमेंट में कि आप कुछ करना चाहते थे, कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करना चाहते थे, या कुछ अपनी हॉबी परस्यू करना चाहते थे, या यूट्यूब से कुछ नया वीडियो सीखना चाहते थे। तो
दिस इज द बेस्ट टाइम, आप वो करिए। आप अपने चाइल्डहुड में बैक जाइए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी आपकी एज है, आप पीछे जाइए और आप थोड़ा सा उसको वो करिए कि यार मैं ये करना चाहता था, मैं कीबोर्ड सीखना चाहता था, मैं गिटार सीखना चाहता था, मैं गाना सीखना चाहता था, मैं भरतनाट्यम सीखना चाहती थी। तो जो भी है, इट्स अ हाई टाइम। जस्ट ओपन राइट। यूट्यूब, बेसिक स्टेप्स आप सीख सकते हो, बेसिक आप सारेगामा सीख सकते हो। आप अगर स्टोरी लिखने का शौक है तो आप पोएट्री लिख सकते हो, स्टोरी लिख सकते हो। फोटोग्राफी का शौक है तो आप अपनी बालकनी में बैठ के जस्ट बर्ड्स, सिंस अब ह्यूमंस नहीं दिखते, बर्ड्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, उनको आप शूट कर सकते हो और आप नेचुरल ब्यूटी को शूट कर सकते हो, स्काई को, क्लाउड्स को, मून को, सन को। तो ये है कि मेरे मैं यही बोलना चाहूंगी, आप बोर मत होइए, अपना इंटरेस्ट परस्यू कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कीजिए। आप कुछ नहीं, शांत बैठिए, ड्राइंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुकिंग कीजिए, लेकिन आप बोर मत होइए। इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करिए एंड स्टे बिजी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। दिस शैल टू पास, ये सब चला जाएगा, फिर आप वापस बिजी हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि अरे वो एक लॉकडाउन वाला टाइम था, उसमें मैं काश ये कर लेता। तो वो काश का मौका अभी है, जो है अभी है, जस्ट डू इट।